So, Bismillahirrahmanirrahim. What we were talking about basically analysis of data of biomarker study. Biomarker study जैसे हमने डिस्कस किया था, there are basically two groups. एक में एक outcome है और एक outcome नहीं है. This outcome can be presence and absence of a disease. This outcome can be a particular bad or good outcome in a patient. It can even be something like mode of delivery in obstetric patients. Any particular outcome जिसके दो possible answers हों, yes, no. और इसके अंदर आप उस आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए आप कोई मार्कर चूज करते हैं, वो आपका बायोमार्कर होगा. तो ये डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी बन जाती है, जो कि डायग्नोस्टिक बायोमार्कर या इवन प्रिडिक्टिव बायोमार्कर जो कहे कि ये पेशेंट्स ये चीज डेवलप कर लेंगे, या ये पेशेंट्स खुदा ना खास्ता पास अवे हो जाएंगे, या ये पेशेंट्स जो है उनका मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन होगा, अगर आपने इसको कोहर्ट में डिजाइन किया हुआ है. और अगर आपने क्रॉस सेक्शनल या केस कंट्रोल में इसको डिजाइन किया हुआ है, तो आप ये कहोगे कि इनसे ये डायग्नोज हो सकते हैं अगर आप पेशेंट्स और हेल्दी ग्रुप ले रहे हो. You can, in this paper I was measuring serum surfactant protein D, and my two groups were patients who were having exacerbation of the disease and patients who were stable. Both were patients, but one was having exacerbation and one was stable, and I was interested to know if this biomarker can predict who will have exacerbations. So उसके अंदर again उसके अंदर we made something called ROC curve. अब आपको मैंने ideal ROC curve दिखाया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि it's still going up and it is obviously not 100%. It is, and this line जो होती है दरमियान में, ये represent करती है 50%. यानी अगर कोई टेस्ट 50% ट्रू पॉजिटिव निकले और 50% फॉल्स पॉजिटिव निकले, तो वो टेस्ट बिल्कुल यूजलेस है. अच्छा, और उसके लिए ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक 50% फॉल्स पॉजिटिव रेट वाले टेस्ट को. लेकिन मेरा जो कर्व है वो ऊपर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड ROC. ROC कर्व को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने के बाद you talk about a receiver operating characteristic curve was generated to evaluate the ability of SPD levels, biomarker, to discriminate between patients with and without exacerbations. इसी तरह आप लिख सकते हो कि I made a receiver operative characteristic curve to evaluate the ability of vitamin XYZ discriminate between patients susceptible to gestational diabetes and those who are not. Those who are going to have C-section and those who are going to have normal vaginal delivery, to discriminate between patients who are susceptible to increased frequency of exacerbation, those who are susceptible to low frequency exacerbation. या आप ये भी कह सकते हो to discriminate between patients who are susceptible to die within 1 week of hospitalization, अगर वो कोविड वाली स्टडी कर रहे हैं, and those who are susceptible to who are likely to survive. इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें बतानी होती हैं. टोटल एरिया अंडर द कर्व वाज, और ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी. एरिया अंडर द कर्व बताया है, एरिया का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहे हैं, और उसकी पी वैल्यू. फिर ऑप्टिमल क्रॉस कट ऑफ पॉइंट बताना है. द मोस्ट ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी एंड 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, जो कि दूसरे हमारे एक्सिस पे था, यानी true positives and false positives, was SPD level of 150 milligram per deciliter. I'll just show you how we take that. And at this cutoff point, since specificity was 77%, which means that this test which I'm proposing is going to be able to diagnose 77% true positives. And sensitivity is 74%. 74% ये true negatives को identify कर सकता है. And this is the way we write our results for biomarker study. How did I come across them? These are the things we are measuring, right? So in a diagnostic accuracy study, we just need 2 variables. मैंने बताया था, एक वो वेरिएबल जिसकी बेसिस पे हम 2 आउटकम्स डिसाइड कर रहे हैं, पेशेंट है या वो आउटकम नहीं है. तो एक बाइनरी वेरिएबल होगा जिसका आंसर यस या नो में होगा, राइट? और दूसरा वेरिएबल, हमें एक कंटिन्यूस वेरिएबल चाहिए, सीरम लेवल्स ऑफ समथिंग, ब्लड लेवल्स ऑफ समथिंग, या कोई और, अगर आपने जेनेटिक एक्सप्रेशन है या कोई भी और मार्कर है, प्रोटीन लेवल्स हैं. ये 2 बेसिक हमारे वेरिएबल्स हैं. और एक यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं आपको, लेकिन पहला वेरिएबल इज जस्ट सीरियल नंबर टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स.
सीरियल नंबर के जरिए पेशेंट आईडी दी गई है। तो पहला वाला वैसे ही हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, लेकिन ये देखो फर्स्ट वेरिएबल विटामिन बी 12 लेवल्स, दिस इज अगेन वो जो पेपर मैंने था उसका मैंने हाइपोथेटिकल डाटा बनाया है। और ये विटामिन कोई भी हो सकता है, विटामिन लेवल इन पिकोग्राम पर ml। आप सपोज आपने कंडक्ट की कि जिसमें आपने देखना था कि जिन लोगों का विटामिन एक्स कोई विटामिन है वो डेफिशिएंट होता है, मे बी ये पेशेंट्स ससेप्टेबल होते हैं टू डेवलप डायबिटीज। प्री डायबिटीज नहीं होती ना कुछ लोगों में, मे बी इट इज लिंक टू सम पर्टिकुलर विटामिन डिफिशिएंसी। तो आपने क्या किया, 2 पेशेंट्स लिए विद प्री डायबिटीज एंड विदाउट प्री डायबिटीज और एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी बना ली और उसमें आपने विटामिन B12 लेवल्स मेजर कर, आपका दिल किया, और अब आपने देखना है आपके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए। लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स तो आ गए इन दोनों ग्रुप्स में, टी टेस्ट के जरिए मुझे पता चल गया कि देयर इज अ डिफरेंस, बट कैन आई यूज दिस टेस्ट एज अ डायग्नोस्टिक बायोमार्कर या प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर फॉर प्री डायबिटीज? अगर आपने कोहॉर्ट स्टडी रन की होती जिसके अंदर आपने देखना होता कि जब ये डायबिटीज लेवल्स को आपने फॉलो किया, कुछ देर बाद आपने पेशेंट्स को रिक्रूट किया, उनके बेसलाइन डायबिटीज लेवल्स किए, बेसलाइन विटामिन लेवल्स किए, और फिर देखा 6, 7, 8 साल बाद उनमें से कितनों को प्री डायबिटीज होती है, कितनों को प्री डायबिटीज नहीं होती। तो ये आप प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर बता सकते कि पहले से हम विटामिन D, E, F जो भी आपके हैं विटामिन उसके लेवल्स करें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको फ्यूचर में प्री डायबिटीज होगी कि नहीं। अभी आप इसको अगर क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो तो आप बेसिकली आप डायग्नोस्टिक बायोमार्कर के तौर पे इस विटामिन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो कि बेसिकली इस विटामिन की डेफिशिएंसी जो है शायद ये हमें डायग्नोज करने में हेल्प करे कि ये पेशेंट प्री डायबिटीज का है कि नहीं। और बाकी विटामिन B12 लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा विटामिन ये कोई करता भी है कि नहीं। विटामिन X लेवल्स और प्री डायबिटीज का स्टेटस। अब हम डाटा में आते हैं, ये देखो ये तो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर तो आगे आपका इसके ये विटामिन X लेवल्स हैं, 86 पिकोग्राम पर ml, 112 सबकी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे 1 और 2 है। 1 का मतलब क्या था देखते हैं। 1 को मैंने कोड रखा हुआ था हेल्दी कंट्रोल और 2 को मैंने कोड रखा हुआ था प्री डायबिटीज। सो जो शो हो रहे हैं 2 वो प्री डायबिटीज के हैं और जो शो हो रहे हैं 1 वो हेल्दी कंट्रोल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आइए एनालाइज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन डायबिटिक्स और हेल्दी प्री डायबिटिक्स और हेल्दी पेशेंट्स में विटामिन X का फर्क है भी कि नहीं, तब हम जाके आगे स्टडी करें ना। तो उसके लिए मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। हमने कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, हमने ये विटामिन X के लेवल्स और ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा प्री डायबिटीज, जो एक ग्रुप में हमने लेबल किया हुआ है 1 और एक ग्रुप को हमने लेबल किया हुआ है 2, और हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये फर्क है भी कि नहीं। और हमारा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. ये मेरी पेज की स्क्रीन है। अब देखें इस स्क्रीन में सबसे आखिर में ROC कर्व की ऑप्शन है। Yes. एनालाइज के अंदर ही एनालाइज के ड्रॉप डाउन गिरता है, जैसे देखो ये एनालाइज ऊपर और इसमें ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे ROC कर्व आ जाता है, राइट? मैडम है, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल मैडम मेरे ऐसा नहीं है, मेरा SPSS 26 है, इसमें नहीं है। इसमें ROC कर्व नहीं है। ओके, अब मैं इसको अगर इफ आई ओपन ROC कर्व एंड नाउ आई शेयर अगेन, नाउ कैन यू सी ROC कर्व का स्मॉल बॉक्स खुला हुआ मेरी स्क्रीन पे? Yes, ma'am. हाँ, अब Yes, ये सभी, ma'am. हाँ वेरी गुड। अब इसके अंदर देखो 2 ऑप्शंस हैं, एक है टेस्ट वेरिएबल और एक है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब कि वो कौन से आउटकम की बेस पे आपने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं। इन माय केस इट वाज प्री डायबिटीज एंड नॉन प्री डायबिटीज, तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करती हूँ, ठीक है? और कौन बायोमार्कर कौन सा मैं टेस्ट कर रही हूँ, दैट इज विटामिन X। स्केल वेरिएबल उसको मैं यहाँ पे करती हूँ। अच्छा, ये मुझे ये भी बताना है कि प्री डायबिटीज में मैंने लिखा हुआ था 1 हेल्दी कंट्रोल और 2 को मैंने लिखा हुआ था प्री डायबिटीज। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट प्री डायबिटीज है ना,
तो मैं स्टेट वेरिएबल 1 नहीं लिखूंगी, वो तो हेल्दी कंट्रोल है, मुझे आइडेंटिफाई करने हैं प्री डायबिटीज। तो मेरे 1 और 2 में जो ऑप्शन है मैं यहाँ लिखूंगी 2 की मैंने लिखा क्योंकि मैंने प्री डायबिटीज में 2 वैल्यूज लगाई हुई थी। 1 का मतलब है हेल्दी कंट्रोल, 2 का मतलब प्री डायबिटीज, और मेरे लिए टारगेट वो है इस बायोमार्कर स्टडी का, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखना है। अगर आपने 0-1 लगाया हुआ है तो आप 1 लिखेंगे। जो भी आपने डिजीज टारगेट कंडीशन की वैल्यू लगाई हुई है ना, आपने यहाँ वो लिख। मुझे डायगोनल रेफरेंस लाइन भी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि ये कितना बेहतर टेस्ट है। स्टैंडर्ड एरर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी चाहिए, मुझे वो भी रिपोर्ट करने होंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मुझे जरूर चाहिए क्योंकि इनसे मैं कट ऑफ वैल्यू बनाऊं। इन ऑप्शंस में अच्छा, अब ये हमने टेस्ट की डायरेक्शन को पहले से पता होना। मैंने पहले टी टेस्ट किया था ना, तो मैंने उसमें देखा था कि लो विटामिन लेवल्स वर एसोसिएटेड विद प्री डायबिटीज, है ना? स्मॉलर टेस्ट वाज एसोसिएटेड विद प्री डायबिटीज। तो मैं ये लार्जर टेस्ट इंडिकेट्स मोर पॉजिटिव टेस्ट मेरे लिए ट्रू नहीं है। मेरी एग्जांपल में स्मॉलर टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट्स मोर पॉजिटिव टेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरे एग्जांपल में विटामिन एक्स लेवल्स थे वो कम थे प्री डायबिटिक्स में, जो मेरी टारगेट कंडीशन है, और ज्यादा थे हेल्दी कंट्रोल्स में। तो मेरे केस में स्मॉलर टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट्स मोर पॉजिटिव टेस्ट। अगर आप कोई ऐसा बायोमार्कर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर ज्यादा होंगे सीओपीडी में या स्किज़ोफ्रेनिया में या डायबिटीज, उस केस में आप अपर वाली ऑप्शन चूज करोगे कि लार्जर टेस्ट इंडिकेट्स मोर पॉजिटिव रिजल्ट। और ये हमें पता कैसे चला? जब पहले हमने टी टेस्ट के लिए कंपेयर वाली ऑप्शन ली, उसने हमें बता दिया कि मीन लेवल्स जो हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में इतने हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डायरेक्शन क्या जा रही है, लार्जर टेस्ट मोर पॉजिटिव रिजल्ट या स्मॉलर टेस्ट मोर पॉजिटिव रिजल्ट। ये क्लियर है? Yes, Yes, madam. So we continue this, and now we say moment of truth. I'm very excited. Yes. Yes. अच्छा, एक तो पुराने टेस्ट जा रहे हैं. Let's get rid of the old tests. अब नीचे आप देखो, ये दिल नहीं खुश हुआ? इतना दिल खुश हुआ इसमें. वो ऑप्शन ठीक है, मैं स्मॉलेस्ट वाले पे चली गई अब। हाँ, अब इसमें सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव्स, मैम अब सही हो गया। सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव्स एंड स्पेसिफिसिटी यानी फॉल्स पॉजिटिव। ये अगर उन्होंने रेफरेंस लाइन लगाई है कि अगर मेरा यूजलेस टेस्ट होता 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव होती, अगर मेरा आइडियल टेस्ट होता तो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही होती। मेरा टेस्ट अच्छा है, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है? 0.868। परसेंटेज में कितना बना? 86%। 86.8। इट्स अ गुड टेस्ट, इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि 60% से ऊपर एरिया आए, इट्स अ फेयर टेस्ट। 70% से ऊपर आए, इट्स अ गुड टेस्ट। 80% से ऊपर आए, इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। 90% से ऊपर आए इज एन एक्सीलेंट टेस्ट। तो हमारा एरिया अंडर द कर्व आया है, इट्स बिटवीन वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। It is significant, highly significant at p less than 0.001. Area under the curve, p value और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कि अगर हम इस अपने रिजल्ट को 100 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे जनरल पॉपुलेशन में, तो 95 out of 100 times we will get an area between 78.6 and 95%, which is a good 95% confidence interval. जितना नैरो होता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उतने रिलायबल आपके रिजल्ट्स। पी वैल्यू भी हमारी अच्छी आ गई। यहाँ तक सब मेरे साथ है? तो हमें अभी तक हमें ये पता चल गया कि यस, ये एक अच्छा टेस्ट बन सकता है टू प्रिडिक्ट और डायग्नोसिस ऑफ प्री डायबिटीज। अब हमें चाहिए कि हम कट ऑफ वैल्यू क्या प्रपोज करें। हम इस टेस्ट को अगर कमर्शलाइज करते हैं या प्रपोज करते हैं कि कमर्शलाइज किया जाए, तो किस वैल्यू पे लोग समझें कि उनको प्री डायबिटीज है और किससे नीचे उनको प्री डायबिटीज का खतरा नहीं है, वो ये टेबल बताएगी। ये टेबल आपको हर पॉसिबल वैल्यू पे ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स बता रही है। हमें अब इसमें से देखना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पे मैक्सिमम ट्रू पॉजिटिव्स होता है। या तो आप एग्जैक्टली इसमें से वो चीज निकाल दो जिसपे मिनिमम आपके फॉल्स पॉजिटिव्स हैं और मैक्सिमम ट्रू पॉजिटिव्स हैं, या इसमें सब्जेक्टिव मेजरमेंट भी हो सकती है। आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर सकता है, ये आपको स्टैटिस्टिशियन नहीं बताएगा।
कि मैडम वो तो आपको कोई भी बता सकता है जो जिसका बैकग्राउंड ना हो, आपके डिजीज का एक्सपर्ट जो ना हो, कि जी इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम ट्रू पॉजिटिव्स आ रहे हैं और मिनिमम फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो आप ये प्रपोज करें। अगर तो कोई डिजीज किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फॉल नहीं करती तो आपने यही करना है। लेकिन जब स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड की मिसाल वापस ले लें, हमने कोविड का कोई टेस्ट बनाया है डायग्नोसिस का, इसमें हम कोई भी ट्रू पॉजिटिव मिस नहीं करना चाहते, चाहे उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाए, क्योंकि ये हमने पैंडेमिक को रोकना है, राइट? तो इसमें हम ऐसी वैल्यू चूज करना शायद पसंद करें जिसमें सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव्स 90% में हो, चाहे ट्रू फॉल्स पॉजिटिव्स भी ज्यादा हो जाए। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद है पैंडेमिक को रोकने के लिए मैक्सिमम ट्रू केसेस को आइडेंटिफाई करना। उस केस में आप ऐसी वैल्यू भी चूज कर सकते हो जिसमें ट्रू पॉजिटिव्स तो ज्यादा हो ही, और बेशक चाहे थोड़े बहुत फॉल्स पॉजिटिव्स भी ज्यादा हो जाएं। इधर हमने 19% की वैल्यू निकाली थी, हम उसमें कहें कि चलो 20-30% भी हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाएं, लेकिन it is very important for me to identify all the true positives in the population who are carrying COVID so that this pandemic can be controlled. This is an example कि ideally तो आप किसी न्यूट्रल डिजीज के लिए जिससे कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो, जिससे कोई और खतरात ना हो ग्लोबल हेल्थ को या सोसाइटी की हेल्थ को, तो यू कैन चूज द वैल्यू फ्रॉम दोज वैल्यूज जिसमें आपके फॉल्स पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो और ट्रू पॉजिटिव्स भी उसमें ट्रू पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो अगेंस्ट फॉल्स पॉजिटिव जो कि मिनिमम हो। क्योंकि ये ट्रेड ऑफ होता है, जैसे जैसे आप सेंसिटिविटी बढ़ाओगे ना, आपके फॉल्स पॉजिटिव्स भी बढ़ते जाएंगे। सेंसिटिविटी आप कम करोगे ट्रू पॉजिटिव्स के, तब आपके ट्रू पॉजिटिव्स कम हो जाएंगे, लेकिन ट्रू फॉल्स पॉजिटिव कम हो जाएंगे, लेकिन ट्रू पॉजिटिव भी कम होंगे। तो आपने इसमें अपनी क्लिनिकल जजमेंट भी यूज करनी। यू अंडरस्टैंड दैट? यस मैम। इसमें मैं आपको सेंसिटिविटी खाएंगे तो फॉल्स पॉजिटिव भी बढ़ते जाएंगे। मैं आपको दोबारा शेयर करके दिखाती हूँ स्क्रीन। ये हमारा रिजल्ट था, नहीं ये नहीं था, ये आउटपुट आप देख रहे हो, इसमें ये वैल्यूज जा रही हैं ना, ये एक्चुअली सीरम लेवल्स हैं विटामिन एक्स के, और ये बता रहा है कि हर सीरम लेवल के अगेंस्ट ये ट्रू पॉजिटिव्स हैं सेंसिटिविटी और ये फॉल्स पॉजिटिव है। आप देखो कि जब ये आप ट्रू पॉजिटिव का रेट बढ़ा रहे हो 50, 51, 52, 14, 17, फॉल्स पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं। जहां आपके 96% फॉल्स ट्रू पॉजिटिव्स हैं, वहां 39% फॉल्स पॉजिटिव्स। जहां 81% ट्रू पॉजिटिव्स हैं, वहां 19.5% फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रेड ऑफ होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देती हूँ, कार का अलार्म है, वो जो होता नहीं चोर लॉक, जो बोलना शुरू कर देता है somebody tries to open the car, you relate with that? ठीक है ना? अब उसमें ट्रू पॉजिटिव आपने वो टच सेंसिटिव होते हैं, ट्रू पॉजिटिव उसका तब होगा जब कोई चोर गाड़ी खोलने की कोशिश करे, ठीक है? तो आप हल्का सा भी, जितना मर्जी आहिस्ता तरीके से गाड़ी खोलने की कोशिश करेगा चोर, वो सेंसिटिव है टू टच और वो बोलना शुरू कर। लेकिन जो ज्यादा सेंसिटिव होगा वो बिल्ली के गुजरने से भी बोलना शुरू कर देगा, वो किसी हवा चलने से भी, किसी कुछ मोटरसाइकिल पे करीब से गुजरा उस पे भी बोलना शुरू कर देगा, किसी जोर जोर का डेक लगाया हुआ है उससे भी वो आपका जो आपका हाईली सेंसिटिव अलार्म है वो उससे भी बोलना शुरू कर देगा। So that is the difficulty with having a test which is highly sensitive. You will get false positives accordingly. अब अगर आप false positive से तंग आकर, अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी। अगर तो आप किसी ऐसी जगह, आपको गली में गाड़ी खड़ी करने पड़ जाती है जहाँ पे चोरी का इम्कान है, तो आप बर्दाश्त कर लोगे, बार बार नीचे जाके अलार्म बंद कर। लेकिन सपोज आपकी इस तरह का कोई आपको खतरा नहीं है, एंड इट्स अ बॉदर फॉर यू टू गो डाउन ओवर एंड ओवर अगेन एंड सी के आपकी गाड़ी को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जनरली इट्स सेफ, तो आप क्या करोगे, आप उसकी सेंसिटिविटी को कम कर दोगे कि उससे आपकी बिल्ली से गुजरने के, मोटरसाइकिल के चलने से वो अलार्म ना चलना शुरू हो जाए, फॉल्स पॉजिटिव्स कम करोगे। लेकिन इसमें यह भी खतरा है कि अगर आप सेंसिटिविटी ज्यादा कम कर दो, कोई बड़े चालाक सा चोर हो और वो तरीके से गाड़ी खोल के ले जा और वो अलार्म ना बजे, तो ये हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। इसी तरह टेस्ट जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे उनमें फॉल्स पॉजिटिविटी भी ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा कम सेंसिटिव होंगे वो स्पेसिफिक तो ज्यादा होंगे लेकिन सेंसिटिविटी कम होगी। ट्रेड ऑफ होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में, और आपने आइडियली तो वो वैल्यू निकालनी है SPSS के उस टेबल में से जिसमें ट्रू पॉजिटिव्स मैक्सिमम हो, फॉल्स पॉजिटिव्स मिनिमम हो। आपकी
वो आपको विजुअली पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने